were discussing about the topic of the human skeleton. As we have discussed earlier in the previous lecture, human skeleton can be divided into the two main categories or the parts as named as the axial skeleton and the appendicular skeleton. We have discussed in detail about the axial skeleton. We have finished the topic of axial skeleton. Now, a day, we will start the appendicular skeleton. So we view some of the glimpse of the previous lecture. As we have studied, the axial skeleton includes the skull, vertebrae, in the vertebral column, ribs, and the sternum. Then we have studied about the skull. It has two main parts, cranium and the facial bones. Cranium is made up of the 8 bones, 4 unpaired and the 2 other paired. Then we have studied unpaired bones, then the facial bones of 14 bones, 6 paired and 2 unpaired. Vertebral column consisting of about 33 vertebrae having the 4 curvatures are the regions. First one was the cervical region having the 7 vertebrae. Very first vertebra was the atlas and the second one was the axis. The second was the thoracic region having the 12 vertebrae. Lumbar or the loin region consisting of about the 7 vertebrae. We have studied in detail about all these in the previous lecture. And now we are giving some review. Pelvic region, the last region of the vertebral column having the 9 vertebrae. Then pelvic region further have the 2 sets, sacrum. The first 5 fused vertebrae are called sacrum and the last are the 4 fused from the coccyx, which are also named as the tailbones. Then the rib cage. Rib cage is made up of total 12 pairs of the ribs and which articulate with the thoracic vertebrae. First 10 pairs directly or indirectly attach with the sternum to form the costal arc, and the last 2 pairs are the false ribs or the floating ribs which don't attach with the sternum. Now, today, our lecture will start from this topic, which is the second part of the human skeleton, the appendicular skeleton. As student, I have discussed that axial skeleton I have taught to you in the previous lecture. Now, today, we will discuss and start from the appendicular skeleton. As name indicate, appendicular mean appendages, ubhar. It consists of the pectoral and the pelvic girdles and the limbs. Pectoral girdle आपके कंधे हैं, शाने हैं, and 4 limbs अगले आजा यानी कि बाजू. Pectoral girdle is made up of total 3 bones: scapula, suprascapula, and the clavicles. Scapula, suprascapula, and the clavicle. अगर इस डायग्राम को आप देखें, जिसको उसने येलो किया हुआ है, ये पीछे ये जो चप्पू की तरह होता है, आपकी पीठ की तरफ कंधे के पीछे जो चप्पू की तरह है, वो स्कैपुला है. स्कैपुला का ये जो स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं सुप्रास्कैपुला. जो रिब्स के पीछे है, जो आपको वाज़े नजर नहीं आ रहा, ये एरिया स्टार्ट वाला स्कैपुला का होगा सुप्रास्कैपुला. द मेन जो बोन है वो स्कैपुला है, और ये क्लेविकल जिसे हम कहते हैं मक्कड़ हड्डी या फिर हंसली की हड्डी. मक्कड़ हड्डी, हंसली की हड्डी, क्लेविकल. और ये आपके बॉडी की ब्यूटी बोन है. बॉडी की ब्यूटी बोन क्लेविकल है, और फेस की ब्यूटी बोन आपने पढ़ी थी वो ज़ैगोमैटिक है, रुखसार वाली हड्डी. फेस की ब्यूटी बोन ज़ैगोमैटिक और बॉडी की ब्यूटी बोन क्लेविकल. इसलिए आपने देखा होगा
कि जब फैशन शो हो रहे होते हैं, उस फीमेल ने अपना गला थोड़ा सा नेकेड किया होता है और इसको वाजे किया होता है, इसको गले से निकाला होता है, दिखा रहे होते हैं इसको, नेकलेस पहना हुआ है, तो ये हड्डी वहां पर थोड़ी सी उभरी हुई सामने आती है। यानी कि जब जिस्म के ऊपर मोटापा कम होगा तो फिर यह हड्डी वाजे नजर आएगी आपको, ये उभरी होनी चाहिए। इसे कहते हैं फेस की ब्यूटी बोन, सॉरी बॉडी की ब्यूटी बोन है। तो ये आपके कंधे हैं, 2 कंधे हैं आपके, 2 शोल्डर्स हैं, हर एक साइड के ऊपर 3 बोन्स आ रही हैं, स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड द क्लेविकल। तो 3 इधर बोन्स होंगी और 3 उधर बोन्स होंगी। ये हो जाएगा पेक्टोरल गर्डल्स, डबल हो जाने, वरना एक सिंगल साइड पेक्टोरल गर्डल है। स्कैपुला में यहाँ पे कैविटी है जिसके अंदर जाकर आपके बाजू की जो मेन बोन है वो आर्टिकुलेट करते घूमती है। तो ये जो यहाँ पर कैविटी होगी, जहां ये ह्यूमरस, इसका नाम है ह्यूमरस, जहां ये बोन जाकर आर्टिकुलेट करेगी तो इस कैविटी का नाम है ग्लीनाइड कैविटी, या कहते हैं ग्लीनाइड फोसा, ग्लीनाइड कैविटी या ग्लीनाइड फोसा। देन जो मेन बोन आ रही है आपके बाजू की शुरू वाली, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस है। हमने पीछे पढ़ा था कि जो मूवेबल बोन्स होती हैं, जिसके अंदर मूवमेंट होती है, तो उनके एंड के ऊपर कार्टिलेज लगा होता है। ये कार्टिलेज नजर आ रहा है और इस एंड के ऊपर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कार्टिलेज आपको नजर आएगा, ताकि घूमने के दौरान, आर्टिकुलेशन के दौरान ये बोन जाकर यहाँ टकराए ना और फ्रिक्शन कम से कम पैदा हो, रगड़ कम से कम लगे। ये पेक्टोरल गर्डल। देन उसके बाद फोर लिम्ब है, बाजू हैं, अगले अज़ा हैं। फोर लिम्ब को अगर हम देखें, एक फोर लिम्ब को, एक बाजू को, उसके 30 बोन्स हैं, टोटल 30 बोन्स हैं। इसका मतलब हुआ एक पेक्टोरल गर्डल और एक जो फोर लिम्ब है, एक साइड जो है, एक कंधा और एक जो बाजू है, उसमें 3 और 30, 33 बोन्स आनी है। 33 एक कंधे और बाजू में और 33 दूसरे कंधे और बाजू में। तो टोटल दोनों पेक्टोरल गर्डल्स और दोनों फोर लिम्स में टोटल बोन्स 33 और 33 66 बोन्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं फोर लिम्ब की तरफ। फोर लिम्ब की स्टार्ट वाली बोन ह्यूमरस है, जिसको उस डायग्राम में दिखाया हुआ था, ह्यूमरस। देन उसके बाद कोहनी के आगे, एल्बो के आगे 2 बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। रेडियस इज टुवर्ड्स द थंब, जो आपके बाजू की तरफ बोन होगी वो रेडियस है, सॉरी आपके थंब की तरफ वो रेडियस है, और जो आपकी फिंगर्स की तरफ होगी वो अल्ना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाते हैं आपको। ये स्टार्ट वाली ह्यूमरस, ये आपकी एल्बो बनेगी, कोनी है, आगे हम कहते हैं उसकी 2 बोन्स आ रही हैं। जो आपके थंब की तरफ, ये थंब है, थंब की तरफ जो मेन बोन है वो है रेडियस, उसके साथ ये है अल्ना, ये अल्ना है, रेडियस और अल्ना, ये 2 बोन्स है यहां पर। देन उसके बाद ये आपकी बनती है कलाई, रिस्ट, ये रिस्ट बोन्स हैं, ये टोटल 8 हैं, 8 कार्पल्स, इनका नाम है कार्पल्स। कार्पल किसका नाम है? रिस्ट बोन्स का, कलाई का, कलाई वाली हड्डियों का, ये 8 हैं। देन उसके बाद ये एरिया, फिंगर से पहले पहले ये एरिया आपका पाम है, ये आपकी हथेली है, पाम। पाम के अंदर 5 बोन्स है। वो 5 कैसे हो जाएंगी? हर फिंगर की तरफ एक बोन जा रही है, 1 2 3 4 और एक आपके थंब में 5। तो 5 ये मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल ये पाम है, हथेली है, हथेली की हड्डियां हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5। देन उसके बाद है फ्लेंजिस। फ्लेंजिस आपकी वो बोन्स हैं जो आपकी फिंगर्स और थंब में है, फिंगर्स और थंब वाली फ्लेंजिस हैं। कितने टोटल? 14। 14 कैसे हैं? हर फिंगर के अंदर 3 बोन्स आ रहे हैं, 1 2 और 3। इधर देखो 1 2 एंड 3। जो 4 फिंगर हैं, 3 4 12, और थंब में ये 2 बोन्स हैं, ये वाली 2, 1 और 2। जैसे मैं आपसे कहता हूं, अगर हम देखें
ये आपको बाजू बच्चों नजर आ रहा है। इसमें ये थंब में 2 बोन्स है, ये वाली 2 बोन्स, ये 2 बोन्स, ये 1 और ये 2। नीचे ये आपकी पाम की बोन है, ये हथेली वाली है, ये अंगूठे की नहीं है, ये थंब की नहीं है। थंब में 2 बोन्स हैं फ्लेंजेस वाले, 1 और 2। फिंगर में 3 है, हर फिंगर के अंदर 1 2 और 3। ये 3 जो है हर फिंगर में है, और ये 3 फॉर द 12 और ये 2 14 हो गई। ये आपकी पाम है, ये हथेली है। ये जो हड्डी नजर आ रही है ये वाली, ये पाम की बोन है, ये वाली पाम की है, याद करना। तो ये पाम है, यहाँ पर 5 बोन्स हैं, ये मेटाकार्पल्स, और ये आपकी यहाँ पर ये बनती है कलाई, ये कार्पल्स हैं, और ये 8 हैं। देखो यहां से बाजू शुरू हो रहा है, ये ह्यूमरस, रेडियस कौन सी होगी आपकी थंब की तरफ, और अल्ना ये वाली है। अल्ना ये जो बाहर सा बनता है ये वाला, ये अल्ना का है, याद करना बच्चों, अल्ना का है, रेडियस का नहीं है, ये अल्ना है। ये अल्ना जा रही है आपकी फिंगर्स की तरफ, ये अल्ना है। रेडियस कौन सी होगी, जो आपकी थंब की तरफ जा रही है, ये रेडियस और ये अल्ना। शुरू से चलें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्रेंचिस। अब दोबारा देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। 1 2 3 और 8 11 और 5 16 और 14 30 बोन्स आपके फोर लिम्ब में है। 30 इधर हैं और 3 आपके कंधे में, शाने में। तो 30 और 3 33 इधर और 33 इधर, कितना हो जाएंगे 66। तो आपका जो पेक्टोरल गर्डल्स और 4 लिम्स हैं उनमें टोटल 66 वो बोन्स हैं। फिर आगे हम चलते हैं, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब आ गया। पेल्विक गर्डल क्या है, कूल्हा। हाइंड लिम्स हमारी टांगें। जैसे आपके 2 कंधे हैं, वैसे कूल्हे की भी 2 साइडें हैं। पेल्विक गर्डल भी 2 साइडों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि 2 टांगें निकलती हैं, 2 लेग्स निकलती हैं वहां से। अगर हम देखें, एक लेग के साथ पेल्विक गर्डल की एक साइड होगी और दूसरे के साथ पेल्विक गर्डल, दूसरे टांग के साथ पेल्विक गर्डल की दूसरी साइड होगी। जैसे ये डायग्राम दिखाता है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक पेल्विक गर्डल की साइड है, इसे कहते हैं कॉक्सल बोन्स। कॉक्सल बोन्स ये एक साइड है, और ये दूसरी साइड है, ये दूसरी कॉक्सल बोन है। तो 2 कॉक्सल बोन्स यानी कि 2 साइडें मिलकर आपके पेल्विक गर्डल को मुकम्मल करती है। याद करना, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा कि पेल्विक गर्डल में टोटल कितनी बोन्स हैं। टोटल एक पेल्विक गर्डल में टोटल ये 3 और उधर 3 6 बोन्स हो जानी है। एक पेल्विक गर्डल में टोटल 6 बोन्स हैं और 2 कॉक्सल बोन है, यानी कि 2 साइडें हैं, 2 साइडें हो गई। 2 कॉक्सल बोन, हर कॉक्सल बोन में 3 फर्दर बोन्स आ रही हैं, तो 3 इधर और 3 उधर, वो 6 टोटल बोन्स हैं पेल्विक गर्डल में हो जा रही है। अब एक जो साइड है उसमें 3 बोन्स कौन सी हैं, जो मेन खड़ी हुई ये वाली, इसमें थोड़ा सा पर्पल ग्रे किया हुआ है, वो इलियम है। इलियम ये उसके उभार होते हैं, ये उभार है जिससे थाई का साइज बनता है या हिप का साइज बनता है। हिप कहना चाहिए उसको। फीमेल में ये जो उभार है इलियम का, ये ज्यादा होता है फीमेल के अंदर, इसलिए फीमेल का कूल्हा
उसकी हिप थोड़ी सी फैली होती है, और मेल में ये उभार थोड़ा सा यहाँ से कम हो जाएगा, ये ऊपर भी उभार कम होगा, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी भी कम होगी, ऐसे चौड़ाई कम आएगी। तो इसलिए मेल के अंदर जो उभार है फीमेल की तरह ज्यादा चौड़ाई नहीं होता। फीमेल मैं आपसे कह रहा हूं ये बोन थोड़ी सी चौड़ी भी होगी, इसका ऊपर से उभार भी ज्यादा होगा, इसलिए फीमेल में उसका कूल्हा ज्यादा चौड़ा होता है, उसकी हिप चौड़ी हो जानी है। इसका एक फायदा ये भी है, फायदा ये है कि इसके ज्यादा उभार की वजह से, ऐसे दूर हटने की वजह से ये जो गैप है दरमियान वाला ये ज्यादा हो जाएगा। ये कार्टिलेज लगा हुआ है, यहाँ पर कार्टिलेज लगा हुआ है, ये उभार ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो नीचे कैविटी है ये ज्यादा हो जाएगी निचली कैविटी। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, फीमेल में जब ये बोन थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा होंगी, दूर को हटेंगी, इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, ऐसे जैसे मैं कहता हूं इसकी जब चौड़ाई यहां से ज्यादा होगी, जब ज्यादा चौड़ी होंगी तो ज्यादा दूर हो गई है, दरमियान में गैप ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको जूम दिखा रहा हूं, वरना होगा ऐसे नीचे, जूम बनाना पड़ेगा, शायद वीडियो में आपको साफ नजर ना आए, मैं इसको जूम बना रहा हूं, तो गैप ज्यादा हो जाएगा। गैप ये नीचे ज्यादा होगा, नीचे वाला। उसका फायदा फीमेल में ये है ताकि जब जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी हिप की या कूल्हे की, हड्डियां दूर हटेंगी, और प्यूबस, ये प्यूबस बोन होते हैं ये वाली, तो पढ़ाएंगे आपको, प्यूबस बोन ज्यादा दूर हटेंगी तो नीचे गैप ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उस फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बच्चा उसका आसानी से पैदा हो सकता है। अब ऐसी फीमेल जिसकी थाई डिप्रेस हो, अंदर को हो, तो देखो गैप कम हो रहा है जो ही गैप कम होगा तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की नहीं हो सकती, उसका फिर सिजेरियन होगा, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में एक छोटा ऑपरेशन माइनर होता है, एक मेजर ऑपरेशन होता है, ये बाद में चलकर पड़ेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि फीमेल में इसकी चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी, ये उभार भी ज्यादा हो जाएगा, जब ये बोन थोड़ी सी दूर हटेंगी तो ये गैप ज्यादा हो जाएगा, निचले इस गैप की वजह से यहां से नॉर्मल उस बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। तो ये बोन इलियम जिसको उसने येलो किया है, ये इस्कियम, और थोड़ी सी पिंक वाली ये है प्यूबस। तो प्यूबस बोन आकर सामने मिलती हैं और ये कार्टिलेज से मिलती है, कार्टिलेज लगा हुआ है। तो इलियम, इस्कियम और प्यूबस, ये 3 बोन्स हैं। देन ये कैविटी नजर आ रही है, कैविटी जो आपको यहां भी नजर आ रही है, कैविटी ये वाली, इस कैविटी का नाम है एसिटेबुलम। जहां जाकर आपकी लेग की जो मेन बोन है वो आर्टिकुलेट करेगी, उसका नाम क्या है, फ्यूमर। बाजू के अंदर मेन बोन का नाम था ह्यूमरस, ह्यूमरस, और लेग के अंदर उसका नाम है फ्यूमर, फ्यूमर है। तो फीमर जिस डिप्रेशन में जाकर फंसे गढ़े के अंदर, इस गढ़े का नाम पड़ा क्या है, एसिटेबुलम। कंधे के अंदर स्कैपुला में जो गढ़ा या कैविटी थी जहां ह्यूमरस जाकर आर्टिकुलेट करती थी, वहां पर उसका नाम क्या था, ग्लीनाइड फोसा या ग्लीनाइड कैविटी। जबकि कूल्हे के अंदर कैविटी का नाम क्या है, एसिटेबुलम। ये वाली कैविटी खड़ी हुई है जहां ये फीमर जाकर फिट आएगी। ये डायग्राम हो गए। वो कह रहा था आपसे कि हाइंड लिम्ब में कौन सी बोन है, मेन फीमर है, देन आपका घुटना बनेगा, नी जॉइंट बनेगा, उसके आगे पंडली के अंदर ये 2 बोन्स है, टिबिया एंड फेबुला। मेन जो है वो टिबिया है, मेन कौन से, टिबिया, उसमें पतली सी खड़ी होती है फेबुला, टिबिया एंड फेबुला। टार्सल, ये एंकल बोन्स है जो अपना टखना बनाती है। बाजू के अंदर कलाई वाली बोन का नाम था कार्पल्स, यहां पर है टार्सल्स, तादाद सेम आ रही है। हाँ, बल्कि एक बात और याद करो, उसे मिस्टेक आ रही है, टार्सल अब कहता है वो सेमन है, 8 नहीं है, सेमन है। सेमन इसलिए है क्योंकि 2 बोन यहां पर आपस में फ्यूज हो गई है, तादाद कम हो गई है, तो सेमन हो गई है, 8 के बजाय सेमन हो गई। तो टार्सल्स आर द सेमन बोन्स। मेटाटार्सल जिससे आपका पांव का तलवा बनता है, सोल बनता है, वो 5 है। फ्रेंजेस उस तरफ 14 है।
बाकी तरह सेम वैसी आ रही है। फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। 1, 2, 3 या 7 होंगी। 3 और 7 10, 5 15 और 14 29। जो आपका नी बनता है, नी घुटना, जहां दिखाता नहीं है, माना यहाँ पर एक बोन चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक कवर सा है, उसका नाम है पैचिला। पैचिला कवर सा होता है। अपने घुटने को हाथ लगाना फ्रंट के ऊपर, जो आपको ये उभार सा नजर आता है वो पैचुला है, पैचिला। तो उसको मिलाकर फिर तादाद 29 की बजाय 30 हो जानी है। बात समझ रहे हो? टार्सल एक कम हो गई, उसकी बजाय पैचिला शामिल हो जाएगा, तादाद फिर वही 30 हो जानी है। तो ये आपका हाइंड लिम्ब है। फीमर मेन बोन आ रही है, टिबिया, ये टिबिया, हालांकि सही नहीं दिखा रहा आपको। ये जो मोटी बोन है ना, ये वाली, इसको अगर इसको सही नहीं बनाया उसने, इसको इधर बनाना चाहिए था। तो मोटी जो मेन बोन आती है वो फेबुला है, यानी कि आप पंडली वाले जो आगे की तरफ हाथ लगाएंगे अपनी टांग को, तो जो उभरी हुई हड्डी नजर आ रही है, कोना सा बनता है आगे की तरफ घुटने के आगे, वो टिबिया है। और मेजर वेट बेरिंग बोन टिबिया है। आपके जिस्म का सारा वजन उठाने वाली टिबिया बोन है। इससे बेटा सही नहीं बने, पतला कर देना कि पतली बोन फेबुला है, टिबिया मेन बोन होती है। और हार्डेस्ट बोन इन द बॉडी, हार्डेस्ट देखो, एक थी स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी वो आपकी स्कल में है, टेम्पोरल है। दोबारा सुने, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी वो स्कल में है, और उसका नाम है टेम्पोरल, जो कनपट्टी वाली है। और हार्डेस्ट बोन आपकी लेग में टिबिया है, जो आप मेजर वेट बेरिंग बोन है, जो सारे जिस्म का वजन उठाती है, वो टिबिया है। देन साथ पतली फेबुला आती है, फिर ये आपका टखना बनता है टार्सल्स, आगे आपका तलवा बनेगा ये वाला, ये मेटाटार्सल्स, और फिर है फ्लेंजेस। फ्लेंजेस 14 है। सेम उसी तरह जो आपकी फिंगर्स हैं, हर फिंगर में 3 है, चाहे आपकी छोटी उंगली क्यों नहीं है पाँव की, उसे हम कहते हैं चीची उंगली, चीची सबसे छोटी वाली, उसमें भी 3 बोन्स हैं। हर फिंगर में 3 है, लेकिन जो थंब खड़ा हुआ है, अंगूठा है आपके पाँव का, उसमें सिर्फ 2 हैं। तो वो वही 14 हो जाएंगी। दोबारा सुनो, फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस। बाजू में क्या था? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। यहां पर फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजेस।